Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing work, energy, and power. Last day we discussed what is work. Work is the product of force and displacement of the body. Work is done when the force acting on a body results in the displacement. Yani yel kuni body peft ka force act gas. For in forces yel body displays gas, then the product of force and that displacement is called work. If on applying force, the displacement of the body does not happen, and the body does not displace from its position, then no work is done. एक दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं, कुली जो होते हैं ना, कुली मजदूर, वो कितना बोझ उठाते हैं. देखो कितनी नाइंसाफ़ी है अगर हम फिजिक्स और वर्क, कॉमन वर्क में डिफ्रेंशिएट करते हैं. अगर वो बोझ ऐसे खींच के ले जाता है, यानी फोर्स अप्लाई करके किसी बोझ को खींच के ले जाता है पटरी में से एक जगह दूसरी जगह, तो फिजिक्स कहती है वर्क इज डन, क्योंकि द कुली इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द लोड, और वो उस लोड से उस फोर्स अप्लाई करने से उस लोड का डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसकी प्लेस चेंज हो जाती है. तो द प्रोडक्ट ऑफ हिज फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स वर्क डन. लेकिन अब दूसरी बात है, अगर इस कुली ने यह सामान अपने सर पे लादा, सर पे उठाए, ठीक. अब देखिए यहाँ पर भी बेचारा काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है? टू होल्ड दिस लोड ऑन हिज हेड ही इज अप्लाइंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो अथ जो थवान तथ तल, अगर अथ था तम बॉडी कर अपोजिट फोर्स हिर कुन और लोड कर फोर्स अप्लाई कोकुन बोन कुन. गो दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग on each other, in the force of hand or force of head on the load and the force of load on the head, they are acting on each other in the opposite directions, in the opposite and perpendicular directions, and the resultant force is zero. अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक जगह से वो दूसरी जगह ले जाता है लोड, बट वो जो फोर्स अप्लाई करता है ऑन द लोड, उस लोड से, उस फोर्स से उस लोड की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है. उस लोड से जो ये फोर्स अप्लाई करता है, शी इज ओनली होल्डिंग द वेट ऑफ द लोड. वेट मीन्स कि डाउनवर्ड फोर्स जो उस पर एक्ट होता है टुवर्ड्स द अर्थ, उसको होल्ड करने के लिए वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, जो उसका उस वक्त का फोर्स है. दैट डज नॉट रिजल्ट एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, व्हाइल कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड, हिज वर्क डन इज जीरो. His work done is zero, because the force he is applying on the load does not result any change in the displacement of the body. So in any case, while there is no displacement in the body, after applying force on it, no work is done. चाहे कितनी भी एनर्जी खर्च हो जाए, चाहे कितनी भी थकान महसूस हो जाए, लेकिन अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होती है, then work done is zero. Now let's take another example. Work done can be positive as well as negative. ठीक, work done is a scalar quantity. It is having magnitude but no sign of direction. But magnitude जो है, तो ये magnitude इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. Positive work done when the displacement results, when the displacement result in the direction of force. When the displacement result in the direction of force, work done is positive. ये common sense है. ये displacement ते तपरी गश या direction में force apply करसान, that is positive. When the displacement created by the force acts in the opposite direction of the displacement, the force is acting in the opposite direction of the displacement. When some force is acting on the body but in the opposite direction of the displacement, at that time work done is called negative. एक सिंपल सी मिसाल से आपको समझाता हूँ. When engine pulls the car, जब गाड़ी चलती है, it is engine that is pulling the car towards the forward direction. ये कार का इंजन गाड़ी को खींचता है आगे की तरफ. द वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स अप्लाई होता है आगे की तरफ और गाड़ी भी चलती है आगे की तरफ. तो बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन. वर्क डन इज पॉजिटिव. बट वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. When brakes are applied, what happens? गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ है, लेकिन ब्रेक्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो इस गाड़ी को आगे की तरफ धक्का देती हैं कि पीछे की तरफ. वो इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खींच लेती हैं, जिससे उसकी जो रफ्तार कम हो जाती है. बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. इस टाइम जो वर्क हो रहा है गाड़ी पर, जब ये ब्रेक अप्लाई करने से रुक जाती है, तो जो इस वक्त ये गाड़ी काम कर रही है, रुकने का काम, उस टाइम जो ये काम हो रहा है, दैट इज नेगेटिव. एट दैट टाइम नेगेटिव वर्क इज सेड टू बी डन.
अब देखिए यहाँ पर इफ इट इज एन ब्लॉक, ठीक, place it on an horizontal surface. If this block is pulled by some man, यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, ठीक, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है. If the block moves in this direction, ये मूव कर रहा है in this direction, ठीक, और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई कर रहा है. लेकिन मुझे बताइए जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन दिस ब्लॉक, क्या ये सारा फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में? वर्क मीन्स क्या ये सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ है. यूता ये फोर्स अप्लाई कर सो सोरे फोर्स गश न कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट मज कह, बल्कि तमो की हिस्स गश कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट, बाकी हिस्स गश अपोजिशन कम से गश अपोजिशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. गो कोता फोर्स गश यथ मज कन्वर्ट कथ मज डिस्प्लेसमेंट मज, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ फोर्स. सोरी फोर्स गश कन्वर्ट कह, सोरी फोर्स गश तेल कन्वर्ट इनटू द डिस्प्लेसमेंट ये बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी थो जीरो. ये तम मानो एग्जिस्ट गसान कह, मगर नेचुरल में वो एग्जिस्ट होते हैं. इसलिए जो भी हम फोर्स किसी बॉडी में अप्लाई करते हैं, सो सोरी फोर्स गसान कन्वर्ट कह इनटू वर्क. तम फोर्स गसान अपोजिशन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. Part of the force is used into the work. Tell me is in this case work done is equal to fraction of force. Fraction, सारा force नहीं, it is fraction of force acting on the body, acting on the body, acting on the body in the direction of displacement, in the direction of displacement. गसन ठीक इनटू ये फोर्स इनटू गई पत गई डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन एज, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डालना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है दैट इज थीटा. एंगल क्या कहते हैं? थीटा. और इट इज कॉल्ड एफ, यानी एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट एस. तो द precise magnitude of work done is equal to F cos theta into S. F cos theta is the fraction of force. Is the fraction of force that is converted into work. Because whole force applying on the body is not converted into the work. It is only a small fraction of the force or the fraction of the force that is directly converted into the displacement or the work. That is called F cos theta. You will learn to find out the components of force. This is called component of force. In a small component of force. ये आपको ये components of force calculate करना, आपको higher classes में 11th और 12th में यही theta calculate करना है. यानी what component of force is being converted into the work done. ये लेकिन आपके higher classes का concept है. यहाँ पर आपको ये याद रखना है that work done is equal to force into cos theta into S. Cos theta means यानी the fraction of force, the component of force that is being converted into the work done. इसके लिए आपको cos थीटा की वैल्यूज याद रखने हैं. अगर आप वो टेबल आप बना के रखेंगे, ये टेबल आप बना के रखिए, ठीक, इसके दो हिस्से कीजिए. यहाँ पे आप लिखिए थीटा, ठीक, यहाँ पे आप लिखिए इसका cos थीटा. थीटा मीन्स एंगल, और इसका cos वैल्यू कितना होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है. When theta is equal to 0, theta is equal to 0 degree, when there is no angle, वो दो एंगल का रश जिस पर ये फोर्स अप्लाई एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी अथी डायरेक्शन में, यह डायरेक्शन में ये पता इसी डायरेक्शन में फोर्स गस अप्लाई एट दैट टाइम थीटा विल बी 0. व्हेन थीटा विल बी 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1. व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, when theta is 30 degree, is this theta angle is 30 degree, cos 30 is equal to root 3 by 2, root 3 by 2, or that is equal to 0.866, 0.866, ठीक है. ये ज़बानी आपको याद करने हैं. और cos 45, अगर angle between the direction of the displacement and the direction of the force acting on the body is 45 degree, if theta is 45 degree, then cos 45 is equal to 1 by root 2, 1 by under root 2, that is equal to 0.707. If theta is 60, if the angle between the direction of the displacement and the direction of force acting on the body is 60, and then cos 60 is equal to 1 by 2,
that is equal to 0.5. If theta is 90, यानी जैसे ये, if theta is, वही मैं कह रहा था, if theta is 90, then the force acting on the body is perpendicular to the direction of displacement. At that time, cos theta is 0, work done is 0. Because when cos theta is 0, anything multiplied by 0 is equal to 0, it is 0 into s is equal to 0, work done is 0. And if theta is 180, if theta is 180, then the value of cos 180 is minus 1. That means 1 and minus 1, they are equal. लेकिन फर्क ये है, when theta is 0, when that means ये इस force करो apply, ये इस ज़ तरीके से force apply करनी. अगर ये योज पका यहाँ direction में, ये मैं गंडो इस hook पतला में इमी side. वो इमी side से इस लमाते आत, इमी side से displacement करा work done is positive. पे आगो इस पर इस यात पर भी side तक देमो. ये पकान ब्रोन, इस पर इस force करो ये पर apply. At that time force of friction कर oppose या. This पर वनो इसकी force of friction तो यह force दरमियान ये 180, but work done will be negative. Work done will be at that time negative. ठीक है, इस पर कैसे opposite force थे आप पर duty act. At that time it is minus 1. Go work done can be 0 in case of the angle between the displacement and the force. Then the direction of displacement and direction of force is 90. Work done is maximum when the angle is acute. Acute means shabash, less than 90. That is 0, 30, 45. आप देखो यहाँ था 60. When our angle is 0, 30, 45, 60, its value is 1 or 0 से ज़्यादा, 0.8, 0.7, 0.5. वो when angle is acute means less than 90. Means 180 to less than 0 to 90. 0 to 90, work done is maximum. Work done is 0 when theta is 90. Work done is maximum when theta is 0. So this is how work done can be positive as well as negative, and this is how we can calculate the amount of work done by remembering the fact that whole amount of force acting on the body is not converted into work done. It is only a small component of force that is converted into the work done. Hence the work done precisely is equal to F cos theta into displacement, while F cos theta is the fraction of force or the component of force that is converted into the work done. The rest of the force gets cancelled by the frictional force. Hope it is clear to you that now what is work? The second part of this discussion is energy. What is energy? Energy means ताकत. Energy means ताकत. ताकत क्या हो? जैसे गाड़ी चलती है. It is engine. हमारी जो common sense में आता है, it is engine that is pulling the car. कोई शक नहीं है इसमें. लेकिन इंजन में अगर पेट्रोल ना हो, अगर हम तेल ना डालें, can you expect engine to work? No. So that means जो इंजन काम करता है, there is no doubt in that, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई source of energy ज़रूरी है जो कि responsible है for the working of this engine. अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक, तो ये लिफ्ट आपको एक स्टोरी से लेकर दूसरी स्टोरी से लेकर तीसरी या चौथी मंजिल तक पहुँचा देता है. कभी आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये लिफ्ट कैसे ऊपर आ गया, इसने कैसे हमें उठा लिया, नीचे से लेकर ऊपर तक ले आया. अगर प्रिसाइजली इसकी जांच आप करेंगे, यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज अ मोटर, देयर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक, वर्किंग, विच रिजल्ट्स इन द फंक्शन ऑफ दिस लिफ्ट. तो ये लिफ्ट की जो फंक्शन है, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द लिफ्ट. वर्क इज नो डाउट, वर्क इज डन बाय द लिफ्ट. लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि इसके पीछे जो मोटर है, वो मोटर रेस्पॉन्सिबल है किसके काम को? मोटर की एनर्जी. मोटर एनर्जी प्रोवाइड करता है लिफ्ट को, लिफ्ट काम करता है. लेकिन मोटर कहाँ से एनर्जी लाता है? इट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूल की एनर्जी कन्वर्ट होती है इस एनर्जी में, कि जो एनर्जी से ये इंजन फंक्शन करता है और ये गाड़ी चलती है. कोई भी ऐसा काम, यानी मामूली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज आई एम यूजिंग दिस मस्क्यूलर एनर्जी. इफ गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा हो कि इफ देयर इज नो एनर्जी इन द फिंगर्स ऑफ माय हैंड, इन माय मसल्स, अगर मैं ये मसल्स हेकान कंट्रैक्ट तो रिलैक्स गसित की, अगर इमन मन से ताकत के कंट्रैक्ट रिलैक्स गसन, कैन आई बी एबल टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड? नो. एवरी वर्क
is having a source of energy behind it. जहाँ पर भी कोई बॉडी कोई काम करती है, it is because of some energy. किसी भी बॉडी के काम को हम ऐसे नहीं पाएंगे जहाँ पर कोई बॉडी काम करती है विदाउट हैविंग एनी एनर्जी सोर्स बिहाइंड इट. आप जहन में कोई भी काम लाइए, ठीक, और जो भी काम फिजिक्स के रूह में जिसे काम कहते हैं, जो भी काम हम करते हैं उस काम के पीछे कोई न कोई एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है. सो एनर्जी इन द वेरी सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज इट इज एबिलिटी टू डू वर्क. It is ability to do work. It is because of this energy that objects or bodies are able to do work. It is because of the energy that I am able to write. It is because of the energy that you are able to walk. It is because of this energy that we are able to lift something. It is because of the energy that we are able to carry something. It is because of the energy that engine is pulling the car. It is because of the energy of the horse that he is able to pull the cart. But there are several other examples where we can point out that it is energy behind work. It is energy that is being converted into the work. So energy can be defined as ability or capacity to do work. Ability, or we can say capacity of a body to do work. यानी किस बॉडी में कितनी कैपेसिटी है. कैपेसिटी मीन्स कितनी एनर्जी है टू डू सम वर्क. किसी बॉडी में कोई जो वर्क करने की सलाहियत है, वो वर्क करने की सलाहियत क्या है एक्चुअली, इसमें एनर्जी कितनी है. मोर द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, मोर इज इट्स एबिलिटी टू डू मोर वर्क. लेस द एनर्जी ऑफ द बॉडी, लेस इज इट्स एनर्जी टू डू लेस वर्क. ठीक. मोर द एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट कैन डू मोर वर्क. लेस द एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट कैन डू लेस वर्क. हम कॉमन लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम तब भी कोई ज़्यादा काम कर सकते हैं जब हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो हमारे काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है. इट इज़ बिकॉज इट इज़ एनर्जी दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वर्क. ठीक. दिस एनर्जी एंड वर्क दे आर इंटर कन्वर्टेबल. These are two physical quantities, but they are interconvertible. That means energy can be converted into work, and work is converted into energy. It is energy that is being converted into work, and work is converted into the energy. Hence, these two physical quantities are interconvertible, and both these physical quantities are having same SI unit, and that is joule. That is joule. And inshallah by tomorrow we will study energy and different forms of energy and how we can calculate the energy of the body. See you tomorrow again. Khuda Hafiz.